یہ قرضے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ سر قرضے جو عمران خان صاحب کے ارد گرد کارٹل بیٹھا ہوا ہے، جو شوکت ترین بیٹھا ہوا ہے، رزاق داؤد بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح کے بے تحاشا چلیں سر آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے، ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ مہنگائی عوام کی جان کو لگا وہ روگ ہے جسے حکومت لاکھ کوشش کے باوجود ختم نہیں کر پائی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے حکومت نے منی بجٹ بھی پاس کرا لیا۔ یہ اپوزیشن کے خلاف بلا شبہ حکومت کی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن عوام کے لیے یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں، کیونکہ منی بجٹ کی منظوری کے بعد اب مہنگائی کے نئے طوفان کی پیشگوئیاں ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی خبریں ہیں، جبکہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ ایسے میں عوام کی ریلیف نہیں تکلیف بڑھے گی۔ عوام یہ تکلیف بھی برداشت کر لیں گے اگر مستقبل میں اس بیماری سے جان چھوٹنے کی امید ہو۔ حکومت اس کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن کیا یہ دعویٰ حقیقت بن سکتا ہے یا نہیں؟ اسی سوال کا جواب لیں گے بابر ڈوگر صاحب۔ غلام مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کوئی شوق سے نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجبوری تھی، اور کہاں جاتے، یعنی سستا قرضہ کہہ لیں یا کم سود پر قرضہ آئی ایم ایف سے ہی ملتا ہے۔ اسامہ صاحب، پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہنا بند کر دیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ پاکستان ابھی بھی پاکستان میں دنیا کی سب سے سستی اشیاء جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ مل رہی ہیں۔ اس چیز سے بھی باہر آ رہے ہیں۔ حقیقت پسندی جو ہے نا، اگر آپ نے آدھا سچ بولا ہے تو پورا سچ بولیں۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری ہے، گورنمنٹ کو چاہیے تھا اپنے خرچے کم کرتی۔ آپ کے ارد گرد جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں، جو رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے کارٹلز کے حصے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں، ان سے پیسے لیں، اور ان پیسوں کو آپ نے تو کہا تھا کہ امیروں سے پیسے لیں گے، ایسے ٹیکس چوروں سے پیسے لیں گے اور غریبوں پر لگائیں گے۔ اب ہو یہ رہا کہ غریبوں سے پیسے لے کے آپ امیروں پہ لگا رہے ہیں، اور ان کو امیر سے امیر تر کروائے جا رہے ہیں، اور غریب بیچارہ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کھانے کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ادویات مہنگی ہو رہی ہیں، اس کا تو عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوائی کھاتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد خام مال جو ہے اس پہ جو 500 سے زیادہ مائلت کی جو چیزیں ہیں، جیسے بچوں کے دودھ کے پیکٹ ہے، دہی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی، یہ بھی عام آدمی کی ضروریات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے بھی اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آگے آنے، چلو گاڑیاں 1800 سی سی کی تو میں مان لیتا ہوں، اب زرعی اجناس آ جائے، زرعی جو شعبے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا ٹریکٹر ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، اسٹیشنری ہے، پیک فوڈ آئٹمز ہیں، انڈے ہے، پولٹری ہے، گوشت ہے، جانوروں کی خوراک ہے، یہ چھوٹے کسان کے تو مسائل ہی نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ تو نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ اس کے پاس جانور ہے، نہ اس کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں آ جائے، جتنے خیراتی ہاسپٹل تھے، فنڈڈ ہاسپٹل تھے، این جی او جن کو چلا رہی تھیں، خیراتی ادارے چلا رہے تھے، اقوام متحدہ کے انڈر چل رہے تھے، سفارتی مشن کے انڈر چل رہے تھے، ان سب پہ ٹیکس کی جو چھوٹ تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے۔ جناب ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے تو اب ٹی ایچ کیو بھی آپ سارے ختم کر رہے ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو آپ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں اور وہ مال بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی ہوگی 5 روپے، پیٹرول مہنگا، اس کے بعد گیس مہنگی، یہ بھی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان میں عمران خان صاحب، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں ساما صاحب، کہ عام آدمی کی نہ پیٹرول ضرورت ہے، نہ گیس ضرورت ہے، نہ بجلی ضرورت ہے، نہ چھوٹے کسان کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے، نہ اس کو بیج کی ضرورت ہے امپورٹڈ، عام آدمی کو نہ میڈیسن کی ضرورت ہے، نہ پنیر کی ضرورت ہے، نہ گھی کی ضرورت ہے، نہ ڈبل روٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی امپورٹڈ دودھ کی ضرورت ہے۔ کسی عام آدمی تو کوئی امپورٹڈ پھل بھی نہیں نہ کھا سکتا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی مارکیٹ میں امپورٹڈ پھل ہوتا ہے وہ تو امیر آدمی کے لیے، غریب آدمی تو بیچارہ جو ہے وہ بس صبر اور شکر کر سکتا ہے۔ تو پھر اگر اس سارے سینیریو میں دیکھوں تو غریب آدمی کے لیے ایک ہی، یہ جو عمران خان صاحب نے خیراتی ادارے کھولے ہیں جہاں پہ مفت روٹی ملتی ہے، وہ جائیں وہاں سے روٹی کھائیں اور اللہ خیر صلاح، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات بابر صاحب نے کی، غلام صاحب، ہیومن سیکیورٹی کی جہاں پر بات ہوئی تو یہ چیزیں تو ہیومن سیکیورٹی میں شامل کی ہیں انہوں نے، جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی صحت ہے۔ اب اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، وزیر خزانہ بار بار کہہ چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم تو یہ ریفنڈ کر دیں گے آپ کو، یہ 350 ارب کے لگ بھگ ہے، 200 ارب سے زیادہ تو ریفنڈ ہو جائے گا۔ اور یہ آئی ایم ایف نے تو لگایا تھا کہ 700 ارب دیں، ہمیں 700 ارب ٹیکس مزید جمع کریں۔ ہم نے تو اس کو منا لیا 350 ارب تک، اور اس میں سے بھی 200 ارب روپیہ ہم ریفنڈ کر دیں گے۔ غلام مرتضیٰ صاحب،
उसामा गाजी साहब, सबसे पहले देखने की बात यह है कि मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ऐसी नहीं है, ना कभी ऐसी रही है माजी में कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लें। कभी हम पेरिस क्लब के मकरूज़ होते हैं, कभी हम IMF के मकरूज़ होते हैं। और ये लेकिन इसमें ये होता है कि हम अपने हाथ पाँव बांध के किसी के पास हम कभी नहीं गए, हम जाते रहे हैं। और तारीख़ है हमारी 56 में पहला प्रोग्राम लिया था IMF का हमने, तो उस वक्त से लेके IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारी आप समझें कि खुद मुख्तारी है, उसको हमने गिरवी नहीं रखा। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, आप हर चीज़ को छोड़ दें। मैं जानना ये चाहता हूँ बतौर तालिब इल्म, आप दोनों से भी, आप सीनियर सीजनड जर्नलिस्ट हैं, कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं जो IMF से हमने कर्जा लिया है, किस के लिए लिया है हमने? कहा तो ये जा रहा है कि नागुज़ीर था, ले लिया, मुल्क नहीं चलना था। अवाम को क्या दिया इस सारे प्रोजेक्ट ने जो IMF से हमने लिया है? कहाँ गए हैं ये पैसे? ना तो कोई सड़क बनी, ना कोई रेल बनी नई, ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई नवे जो होते हैं कोई बिजनेस वो शुरू हुए। कोई मुझे प्रोडक्टिविटी बता दें इस कर्जे की। अच्छा, तो फिर हमें क्यों ये जूस हमारा निकाला जा रहा है? देखिए ना, ये आप दोनों भी मुझे इस हवाले से बताएं कि ये कर्जे जा कहाँ रहे हैं, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सर, कर्जे जो इमरान खान के इर्द गिर्द कार्टेल बैठा हुआ है, जो शौकत तरीन बैठा हुआ है, रज़ाक दाऊद बैठा हुआ है, और इस तरह के बेताशा। चलें सर, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, उनकी जेबों में जा रहे हैं। हमारे साथ एक मुल्क के बड़े माशी माहिर हैं, कैस असलम साहब हैं, उनसे इस वाले से बात करते हैं। कैस साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सवाल के IMF से इतने डॉलर्स हम ले, अभी 1 अरब डॉलर के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जाता किधर है? ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और किधर गए वो डॉलर्स जो IMF से पहले हम ले चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो एक समझनी पड़ेगी कि IMF जो है वो कर्ज़े रीशेड्यूल करता है, वो कर्ज़े देता नहीं है। वो जो बात वो कर रहे हैं कि वो कहाँ लगेंगे, वो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े जो हैं उसका नाम है रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ये सिर्फ जो आपकी मुश्किलात हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो आपने 6-8 अरब जो देने हैं कहीं, उसको रीशेड्यूल करते हैं। सो टेक्निकली वो कर्जा नहीं देते, वो आपको एक रिस्पाइट देते हैं। मैं हमेशा से समझता हूँ कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर IMF के पास जाने के लिए सारी हुकूमतें, सिर्फ ये नहीं, उनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जो बाकी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक और दूसरे अदारे, वो आपकी रेटिंग बेहतर करके आपको वो कर्जे देते हैं। अगर IMF ये गारंटीज़ नहीं देगा, जिसके पीछे अमेरिका की, सऊदी अरब की, चीन की गारंटीज़ हैं, तो शायद आपके लिए दुनिया में मुश्किलात हो जाएंगी कारोबार करने के लिए। IMF का हमें सिर्फ इतना फ़ायदा है, वरना मुल्कों ने IMF से जान छुड़ाई है और फिर वो तरक्की की। डॉक्टर साहब, हमें भी, मैं आपका बिल्कुल सवाल लेने लगा हूँ, हमें भी IMF से जान छुड़ानी चाहिए। उनके इतने सख्त, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जी, हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो ये क्लेम करती है, उसके मंशूर में ये होता है कि जनाब हम अमीरों से टैक्स लेंगे और गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन जब वो गवर्नमेंट आ जाती है तो पहली बात तो ये कि वो सारे जितने भी लोगों में डॉक्टर साथ लगता है ना, ये सारे उस गवर्नमेंट के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वही मेरे भी लगा हुआ है, मैं नहीं हूं। मैं आपको निकाल के आप वो पर्टिकुलर फेसिस है, वो सारे जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे मशीर बन जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे आज तक इकोनॉमी पिछले 20-30 साल में नहीं संभल सकी, लेकिन ये हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। अब सबसे आसान काम यह है कि GST लगा दिया जाए, और सबसे मुश्किल काम यह कि इन लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जाएं। तो सर, खान साहब का तो एजेंडा ही ये था कि मैंने इन लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने हैं और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आनी है। अब वो फिर GST पे आ गए हैं, फिर एक आम आदमी की जेब जिसमें पहले कुछ नहीं पड़ा हुआ, उसमें जो चंद निवाले रह गए हैं वो भी उसमें खींचना शुरू कर दिया। तो इसका ये इतना मुश्किल क्यों है, इस कार्टेल को तोड़ना, इनसे पैसे लेना? देखिए, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। वह बात ये है कि जब तक आप इसका सिरा कहीं और है, इसका सिरा वो इलेक्शन में कई लाख
आधा करोड़ तक पैसे खर्च करना है और इलेक्शन कमीशन उन लोगों को नाअहल नहीं करता है, फिर वो जाके हुकूमत में वो पैसे अपने घर अपने पैसे भरना चाहते हैं, यहाँ से वो सारी गड़बड़ शुरू होती है। दूसरा ये है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो कानून हैं वो अभी 19वीं सदी के हैं, आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर सके और वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जिसके बाद गवर्नेंस आएगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो सरमायाकारी हम करना चाहते हैं और IMF भी हमसे कराना चाहती है, वो हम अपने दोस्तों को देते हैं, सारी गवर्नमेंट ये इस समेत कि जी उनको मराते दे दें, हालांकि ये SME स्मॉल बिजनेसेस को मराते दें, इनपुट्स पे से टैक्स उठाएं, बिजली और गैस में से जो इनएफिशिएंसीज उनको ख़त्म करें और कंपटीशन कराएं, गैस की कंपनियां हों, बिजली की कंपनियां हों, चीनी की कंपनियां हों, आटे की कंपनियां हों, ताकि फिर रिस्पाइट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम कैपिटलिज्म के नाम पे एक कार्टेलाइजेशन की हुई है और मैं एग्री करता हूँ आपसे, मुझे एक चीज बताएं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि उनके नुमाइंदों को हम मिनिस्टर बना देते हैं। जितनी आप अपनी एक्सपोर्ट शो करते हैं, क्या उतना एक्सपोर्ट का बिल आपको मिलता है? और उस पर जो रिबेट दे रहे हैं, क्या वाकई इतनी चीजें बाहर गई हैं जितनी आप उसको रिबेट दे रहे हैं? सर अरबों रुपया तो ये कार्टेल बगैर एक्सपोर्ट किए कमाया जा रहा है। देखें, बात ये है कि आप जिस इंडस्ट्री को जो टेक्सटाइल है रिबेट दे रहे हैं, मुझे कोई उससे वो नहीं है। सिर्फ ये है कि वो दुनिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 1% है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिसके पास सोने की कान भी है, जिसके पास जवाहरात के काने भी हैं, जिसके पास हर किस्म का मौसम है, हमारे पास ऑनेक्स है, हमें अब एक चीज़ या 20 चीज़ें ऐसी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी बना के जो $20 बिलियन जो हमें इस वक्त चाहिए वो एक साल के अंदर पैदा कर दें। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमने ये नहीं देखी और मैं एग्री करता हूँ कि सिर्फ पुरानी ही सनतों को और वो भी मराद दे के नहीं चलेगी इकॉनमी। हमें बता दें कि नई सनतें लगानी प्राइवेट सेक्टर ने हैं, मगर वो मराते दे के नहीं होंगी। इंडस्ट्री आपने ऑक्सीजन पे लगाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिवाइज करनी पड़ेगी। चाइना से अरबों डॉलर की आप सामान मंगवा रहे हैं जो रोज कूड़े कच्चे में जा रहे हैं, जिसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब जल्दी से सवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी तो फराहम करता है हमें IMF, और कब से हम इसके पीछे हैं, 56 से हम ले रहे हैं जी। और जिस तरह बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन इसको हाईलाइट कभी नहीं किया जाता। हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर ये IMF के पैसे फ्रॉम डे फर्स्ट टिल टुडे कभी नहीं लगे। ये शराफिया के लल्ले तलल्लों के ऊपर पैसे खर्च होते रहे हैं और गरीब बंदा जो है वो कर्जों में जकड़ा जाता रहा है। इकॉनमी डाउन होती गई है और रुपया डाउन होता गया है और बड़े बड़े लोगों के पैसे जो हैं वो कम होते गए हैं। तो ये इनको कौन पूछेगा? कोई है जो इनको कम से कम इनको पूछे? कभी आप अयूब खान से ले लें और फिर भुट्टो साहब को देख लें, फिर उसके बाद आगे आ जाएं तो आपको ज़ियाउल हक साहब का दौर नजर आता है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर, बेनजीर का दौर आता है, नवाज शरीफ का। जी देखें, बात ये है कि मैं ये सारी गवर्नमेंट्स का एग्री कर रहा हूँ, मगर सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पिछली 3 गवर्नमेंट में वो बड़ी वीक और इन्फेंट है। इससे पहले वो डेमोक्रेसियाँ तोड़ दी जाती थी, मार्शल लॉज आ जाते थे। अब ये डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन है जो एक पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी सक्सेस है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जो ये सक्सेस की मरातें आवाम को कब मिलेंगी, और वो सवाल कल रिपोर्ट आई है ग्लोबल जो रिस्क की, और उन्होंने 2, 3, 4 पाकिस्तान के रिस्क गिनाए हैं। पहला रिस्क कर्जे हैं कि हमारे जो 90% GDP कर्जों में चली गई, 87% है। इसको कम जब तक 60% पे आप नहीं लाएंगे, आपके पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क उन्होंने यही प्राइस ट्रैजेक्टरी का है कि जब तक आप इस कीमतों को जो इनपुट प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, ना आपके बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, ना आवाम के पास इतना पैसा होगा। और हम इस गवर्नमेंट को कहने की कोशिश करते हैं, और जो आपने भी कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं
इनडायरेक्ट टैक्सेस को खुदारा कम करें ताकि लोगों की जेबों में कुछ पैसे हों और वो डिमांड साइड को। पेट्रोल महंगा हो गया सर, पेट्रोल और महंगा हो रहा है, आप इनपुट की बात करें और उधर से हम सुनते हैं कि असल में मुझे जो नजर आता है और वो IMF का जो माइंड फ्रेम है वो ये है कि आपके अपने बिजनेसेस अगर कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो उसकी जगह मल्टीनेशनल आके ये बिजनेस संभालेंगे। आपकी गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अपने दोस्तों को मराहतें दे रहे हैं जो कम्पिटिटिव नहीं हैं। गवर्नमेंट की मराहतों से कंपटीशन नहीं हुआ करता। कंपटीशन जो है वो नई टेक्नोलॉजी, अपने लेबर को नई स्किल्स, अपने यूथ को स्किल्स देने, मुझे तो वो नज़र नहीं आई। ना स्किल्स नज़र आ रही हैं, ना नई टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी ले आए तो वो ऑटोमेटाइजेशन पे होगी, वो रोबोटिक्स पे होगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी, फिर ये कौम की एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट करेंगे। सो SMEs हैं जहाँ गवर्नमेंट को छोटा कारोबार, छोटा दरमियाने दर्जे का उसको मराद दे। लेकिन ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब कहते हैं मार्च के बाद महंगाई काफी हद तक बेहतर हो जाएगी, आपको ये नजर आ रहा है 2-3 महीने में कुछ कंट्रोल हो जाए? मैं एक मॉरल इशू डिस्कस करने लगा हूँ कि जब तक इस मुल्क के हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, मिनिस्टरों को मुफ्त घर, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, आवाम के लिए कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। आपको नहीं लग रहा कि ये हमारी जेबों से लेके तो वो मुफ्त दे रहे हैं, जब वो बिल देना शुरू करेंगे ना फिर उनको भी अकल आएगी कि चीज़ें सस्ती होनी ज़रूरी हो गई।